السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ علم اقوام کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس، تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی، دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. انڈیا پاکستان تناؤ بڑھا، LOC پر پاکستانی فائرنگ، انڈین آرمی نے بھی جواب دیا۔ آرمی چیف کا پہلگام دورہ، سیکورٹی صورتحال کا لیا جائزہ۔ امت شاہ نے چیف منسٹر سے کہا ڈیڈ لائن سے پہلے تمام پاکستانیوں کو واپس بھیجیں۔ پانی بند کرنے کے فیصلے پر عمل کے لیے اعلیٰ سطحی کی میٹنگ۔ پاکستان نے پہلگام حملے کو فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ سینٹ میں قرارداد منظور، انڈیا کے الزامات رد کر دیے گئے، کہا غلط مہم جوئی پر ٹھوس جواب دیں گے۔ پاکستانی شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری، تناؤ سے کرتارپور راہداری غیر متاثر، سکھ یاتریوں کا آنا جانا برقرار۔ پہلگام حملے کے خلاف ملک کے کئی مقامات پر احتجاج، مسلمانوں نے کالی پٹیاں پہن کر لیا حصہ۔ نارتھ غازہ کے گھر پر اسرائیلی بمباری، 18 شہید، 24 گھنٹوں میں 52 جاں بحق۔ حماس اسنائپر کی فائرنگ میں اسرائیلی فوجی مرا، 3 زخمی۔ حوثیوں نے 6 ہفتوں میں 7 امریکی ڈرونز مار گرائے۔ واشنگٹن مسلسل حملوں کے بعد یمنیوں کی طاقت توڑنے میں رہا ناکام۔ خامنہ ای اور ایران کے صدر سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کی پیشکش۔ ہفتے کو عمان میں ایکسپرٹس لیول بات چیت۔ رشیا کے اہم فوجی جنرل ماسکو میں ہلاک، کارگو بم سے بنایا گیا نشانہ۔ ٹرمپ کے نمائندے کی پوٹن سے ملاقات۔ اور نئے وقت قانون پر سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت کا حلف نامہ، کہا قطعی فیصلے تک کسی بھی دفعہ پر روک نہ لگائی جائے۔ سرخی آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پہلگام حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان تناؤ برقرار ہے۔ لائن آف کنٹرول پر پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی اور انڈین آرمی نے اس کا جواب بھی دیا۔ انڈین آرمی چیف بھوپیندر دیودی نے پہلگام حملے کے مقام کا دورہ کرتے ہوئے سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے تمام چیف منسٹرز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی بھی پاکستانی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد انڈیا میں نہ رہے۔
दूसरी तरफ पाकिस्तानी ओहदेदार पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी झूठा हमला करार दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया में कहा गया है कि पहलगाम वाक़े के सिलसिले में दर्ज FIR से इंडियन गवर्नमेंट का झूठ बेनकाब हो गया। पाकिस्तानी मीडिया में सवाल उठाया गया है कि हमले के सिर्फ 10 मिनट बाद FIR कैसे दर्ज होती है। इंडिया और पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद एक दूसरे के खिलाफ कई इक़दाम उठाए हैं। इंडिया ने 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी समझौते को सस्पेंड कर दिया, सिफारती ताल्लुकात की सतह घटा दी गई है, अटॉर्नी चेक पॉइंट बंद कर दिया गया है और पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात फौजी ऑफिसर्स को मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया गया है। पाकिस्तान ने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं और वार्निंग दी है कि दरियाए सिंध और दूसरी नदियों का पानी बंद करने का मतलब जंग की कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने इंडियन एयरलाइंस के लिए अपनी हवाई हदूद बंद कर दी है, जिससे इंडियन एयरलाइंस को भारी नुकसान होगा। इससे इंडिया से मिडिल ईस्ट और यूरोप और अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स का वक्त और किराए बढ़ जाएंगे। इस दौरान इंडियन ओहदेदार दावा कर रहे हैं कि पहलगाम हमले में लश्कर तैयबा के बानी हाफिज सईद का रोल बेनकाब हुआ है। लश्कर तैयबा की एक महाजी तंजीम FRF ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिस पर पूरे मुल्क में सोग मनाया जा रहा है। ये 2019 में आर्टिकल 370 बर्खास्त किए जाने के बाद से सबसे बड़ा हमला है। इंडियन ओहदेदार तहकीकात के हवाले से दावा कर रहे हैं कि इस हमले में सरहद पार के रोल के इशारे मिल रहे हैं। आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी ने अनंतनाग जिले में पहलगाम के बायसरान गांव का दौरा किया। ये एक तफरीही मुकाम है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सोर्सेस ने बताया है कि आर्मी चीफ ने फौजी ओहदेदारों को हमले के बारे में ब्रीफिंग दी है। इस दौरान नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का तबादला भी हुआ। ओहदेदारों ने बताया है कि पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी की कई खिलाफ वर्जियां की। राजौरी और पुंछ से भी सीज फायर की खिलाफ वर्जियों की खबरें आई हैं। सोर्सेस ने बताया है कि छोटे हथियारों से पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की और LOC पर बाज़ मुकामात को निशाना बनाया। इंडियन आर्मी ने असरदार तरीके से इसका जवाब दिया है। इस दौरान लश्कर तैयबा के 2 मिलिटेंट्स के घरों को धमाकों से तबाह कर दिया गया। इनमें पहलगाम हमले का असल मुलजिम भी बताया जा रहा है। उनकी पहचान आदिल हुसैन घुखर और आसिफ शेख की हैसियत से की गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर से फोन पर बात की। इंडिया ने जुमेरात को 27 अप्रैल से तमाम पाकिस्तानी शहरियों को दिए गए वीज़े कैंसिल करने का फैसला किया था और पाकिस्तान में रहने वाले इंडियन शहरियों से कहा था कि वो जल्द से जल्द मुल्क वापस आ जाए। वीज़े कैंसिल करने का फैसला उन पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए लागू नहीं होगा जिन्हें लॉन्ग टर्म वीज़े जारी किए गए हैं। इस दौरान पाकिस्तानी शहरियों का पाकिस्तान वापस लौटने का सिलसिला भी जारी बताया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले कहा था कि इंडिया हमलावरों और साजिशियों को ढूंढ निकालेगा और उनका दुनिया के कोने तक पीछा करेगा। एक दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम सियासी पार्टियों ने दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के कैंपस के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान सेंट में एक करारदाद मंजूर करते हुए पहलगाम हमले के बारे में इंडिया के इल्जामात को रद्द कर दिया गया है। करारदाद में इंडिया पर जारहियत का इल्ज़ाम लगाया गया और वार्निंग दी गई कि अगर कोई गलत मुहिम जोई करेगा तो इसे ठोस जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने करारदाद पेश की और पहलगाम हमला समेत हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत की है। इसके साथ साथ करारदाद में किसी सबूत के बगैर पाकिस्तान को घसीटने की बेबुनियाद कोशिशों पर इंडिया पर तनकीद की गई और इसे गैर जिम्मेदाराना और छेड़खानी करार दिया गया। इसहाक़ डार ने सेंट को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के नतीजों और सिफारिशात के बारे में ब्रीफिंग भी दी। इन्होंने कहा है कि इंडिया वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का फैसला ऐलान जंग के बराबर होगा। इन्होंने कहा है कि पानी 240 मिलियन लोगों की लाइफलाइन है और इसे हथियार बनाने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर से कहा है कि 48 घंटों की डेडलाइन से पहले पाकिस्तानी शहरियों की शिनाख्त की जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। अमित शाह ने मंगल को हमले के बाद पहलगाम का दौरा किया था। जुमा को भी इन्होंने एक अहम मीटिंग में ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। इस मीटिंग में जनशक्ति की वजीर CR पाटिल और दूसरे ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। समझा जा रहा है कि इसमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के फैसले पर अमल आवरी के बारे में बातचीत की गई। वर्ल्ड बैंक ने इस समझौते की जमानत दी थी। 1965, 1971 और 1999 की कारगिल जंग के दौरान भी ये समझौता मुतासिर नहीं हुआ था।
वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी मीटिंग में मौजूद थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने हमेशा इंडस वाटर ट्रीटी की मुखालिफत की और इसे जम्मू कश्मीर के लिए नाइंसाफी समझा है। लोकसभा के लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी ने जुमा को कश्मीर का दौरा किया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और पहलगाम हमले के बारे में बातचीत भी की। इससे पहले इन्होंने आर्मी हॉस्पिटल में जख्मी टूरिस्टों से मुलाकात के बाद इन्होंने उमर अब्दुल्ला से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा में होने वाले एक इनकाउंटर में लश्कर तैयबा का एक कमांडर हलाक हो गया, जिसकी पहचान अल्ताफ लिली की हैसियत से की गई। एक खास इंटेलिजेंस इत्तला पर फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुमा की सुबह ऑपरेशन किया था। इंडिया पाकिस्तान तनाव के बावजूद करतारपुर राहदारी सिर्फ यात्रियों के लिए खुली हुई है। करतारपुर राहदारी के जरिए सिख यात्री पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहब जा सकते हैं, जहां सिख मत के बानी गुरु नानक की आरामगाह है। इस गुरुद्वारे का डेरा बाबा नानक से जोड़ा जाता है, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले में है। ये 4.7 किलोमीटर की वीजा फ्री राहदारी है। 2019 में इस कॉरिडोर को खोला गया था। पाकिस्तान ने इंडिया के सख्त कदमों का जवाब देते हुए इंडियन शहरियों के वीजे कैंसिल कर दिए थे, लेकिन सिख यात्रियों को छूट दे दी है। इस दौरान पहलगाम हमले के खिलाफ मुल्क के कई मुकामात पर एहतजाज किया गया। मुसलमानों ने जुमा के दिन अपने बाजुओं पर काली पट्टियां पहनकर पहलगाम हमले पर अपने गम का इजहार किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज को पहलगाम हमले के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एहतजाज को पहलगाम हमले के बाद 3 दिनों के लिए रोक दिया है। यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया और पाकिस्तान से सब्र व तहम्मुल से काम लेने की अपील की है। यूनाइटेड नेशंस के तर्जुमान स्टीफन ने न्यूयॉर्क में कहा है कि हम दोनों मुल्कों से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल से काम लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब ना हो। इन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी मसले को बातचीत के ज़रिए पुरअमन तौर पर हल किया जा सकता है। इस दौरान बाज़ ख़वातीन ने कहा है कि उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है लेकिन अब भी इंडियन पासपोर्ट वो रखते हैं। खबर गाजा से। नॉर्थ गाजा में इस्राएली फौज ने एक घर पर बमबारी की, जिससे 18 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। कई जख्मियों को इंडोनेशियन हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। वजारत सेहत के हवाले से कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में गाजा में 52 फलस्तीनी शहरी जाम भाग हुए। गाजा के कई इलाकों में हमले किए गए, जिनमें शुजाइया और मवासी शामिल हैं। इस दौरान नॉर्थ गाजा में लड़ाई के दौरान एक इसराइली फौजी मारा गया और 3 जख्मी हो गए। इसराइली मीडिया में इस वाक़े की तस्दीक की गई। बताया गया है कि करीबी फासले से हमास के बंदूक बरदारों ने उन्हें निशाना बनाया। इस तरह ज़मीनी ऑपरेशन शुरू होने के बाद से मरने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 316 हो गई है। मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस दौरान इसराइली फौज ने अवाम में बढ़ती हुई बेचैनी के दरमियान लड़ाई में रिजर्व सिपाहियों का इस्तेमाल कम कर दिया है। इस दौरान हज़ारों मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा में जुमा की नमाज अदा की। इसराइल ने कई पाबंदियां लगाई थीं। इसके बावजूद जोश व खरोश के साथ लोग जुमा की नमाज अदा करने के लिए उमड़ पड़े। जुमा का खुतबा देते हुए शेख अकरमा साबरी ने इसराइली जारहियत को रोकने के लिए फौरी एक्शन पर जोर दिया। इन्होंने कहा है कि अक्सा में आए दिन जो हो रहा है वो महज खिलाफ वर्जी नहीं है, बल्कि ये मस्जिद अक्सा के खिलाफ ऐलान जंग है। यमन के हौसियों ने 6 हफ्तों में अमेरिका के साथ ड्रोन्स को मार गिराया है, जिनकी मालियत $200 मिलियन बताई गई है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बताया है कि इनमें से कुछ 3 ड्रोन्स पिछले हफ्ते मार गिराए गए, जो इस बात का सबूत है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद हौसियों की ताकत बरकरार है। ईरान ने गाजा में इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी रहने की मजम्मत की है। वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने बयान में कहा है कि गाजा की नाकाबंदी और इंसानी इमदाद में रुकावट काबिल मजम्मत है, जो रिफ्यूजी कैंप्स और शेल्टर होम्स पर हमलों के साथ साथ जारी है। इसराइल की ये कार्रवाई जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। इन्होंने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी और जंगी जराइम के लिए इसराइली लीडर्स को सज़ा देने का मुतालबा किया और कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के सदर मसूद पीस और सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई से मुलाकात के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही। इन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल में हम ईरान के साथ डील करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बातचीत हो रही है। पहले दौर की बातचीत के बाद अब एक्सपर्ट्स लेवल की बातचीत होने वाली है। ओमान, अमेरिका और ईरान के दरमियान मसालिहत कार का रोल अदा कर रहा है।
ट्रंप ने कहा है कि इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को ईरान के साथ जंग में घसीट नहीं सकते। एक्सपर्ट लेवल की बातचीत हफ्ते को ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में होने वाली है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन ने एक्सपर्ट्स लेवल की बातचीत से इत्तेफाक किया है। इससे पहले बातचीत में अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव वोटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने हिस्सा लिया है। रशिया के एक फौजी जनरल कार बम धमाके में हलाक हो गए। ये वाक़या मॉस्को में पेश आया। रशियन अहदेदारों ने बताया है कि जनरल यारोस्लाव मस्कालीफ उन अहम फौजी लीडर्स में शामिल हैं जिन्होंने रशिया की ज़मीन के अंदर यूक्रेन ने उन्हें निशाना बनाया। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब ट्रंप की खुसूसी नुमाइंदे स्टीव वोटकॉफ मॉस्को में रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। एक दिन पहले रशिया ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमले किए थे जिनमें दर्जनों लोग हलाक और जख्मी हुए थे। फौजी जनरल कार में सफ़र कर रहे थे जब उन्हें बम धमाके से हलाक कर दिया गया। जब से ट्रंप दूसरी बार सदर बने हैं, ये वोटकॉफ का रशिया में चौथा दौरा है। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हुए नए वक्फ कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को रद्द करने की ख्वाहिश की है। माइनॉरिटी अफेयर्स वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी शेरशाह शेख मोहिउद्दीन के जरिए यह हलफनामा दाखिल किया गया। यह हलफनामा 1332 सफ़ात का है। मरकजी हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की किसी भी दफ़ा पर रोक न लगाने की दरख्वास्त की और कहा है कि यह तस्लीम शुदा बात है कि अदालत ने रास्त तौर पर या इनडायरेक्ट तरीक़े से किसी कानून की दफ़ात को रोक नहीं लगाई है, बल्कि आखिर में यह फैसला सुनाती है। हुकूमत ने कानून का बचाव करते हुए कहा है कि 2023 के बाद 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को वक्फ करार दिया गया, जो हैरत की बात है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 5 मई तक नए वक्फ कानून पर रोक लगी हुई है। हुकूमत ने 17 अप्रैल को यकीन दिलाया था कि वो अगली सुनवाई तक स्टेट्स को बरकरार रखेगी। अब 5 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की क़यादत वाली बेंच इस मामले पर सुनवाई करने वाली है और उम्मीद है कि अदालत इस मामले पर अबूरी हुक्म जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट में 70 से ज़्यादा दरख्वास्तें दाखिल करते हुए नए वक्फ कानून को चैलेंज किया गया था। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में है खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इंडिया पाकिस्तान तनाव बढ़ा। LOC पर पाकिस्तानी फायरिंग, इंडियन आर्मी ने भी जवाब दिया। आर्मी चीफ का पहलगाम दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। अमित शाह ने चीफ मिनिस्टर से कहा, डेडलाइन से पहले तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजें। पानी बंद करने के फैसले पर अमल के लिए आला सतही की मीटिंग। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया। सेंट में करारदाद मंजूर, इंडिया के इल्जामात रद्द कर दिए गए। कहा, गलत मुहिम जोई पर ठोस जवाब देंगे। पाकिस्तानी शहरियों की वापसी का सिलसिला जारी। तनाव से करतारपुर राहदारी गैर मुतासिर, सिख यात्रियों का आना जाना बरकरार।
پہلگام حملے کے خلاف ملک کے کئی مقامات پر احتجاج، مسلمانوں نے کالی پٹیاں پہن کر لیا حصہ۔ نارتھ غازہ کے گھر پر اسرائیلی بمباری، 18 شہید، 24 گھنٹوں میں 52 جاں بحق۔ حماس اسنائپر کی فائرنگ میں اسرائیلی فوجی مرا، 3 زخمی۔ حوثیوں نے 6 ہفتوں میں 7 امریکی ڈرونز مار گرائے۔ واشنگٹن مسلسل حملوں کے بعد یمنیوں کی طاقت توڑنے میں رہا ناکام۔ خامنہ ای اور ایران کے صدر سے ملاقات کے لیے تیار ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے کی پیشکش۔ ہفتے کو عمان میں ایکسپرٹس لیول بات چیت۔ رشیا کے اہم فوجی جنرل ماسکو میں ہلاک، کارگو بم سے بنایا گیا نشانہ۔ ٹرمپ کے نمائندے کی پوٹن سے ملاقات۔ اور نئے وقت قانون پر سپریم کورٹ میں مرکزی حکومت کا حلف نامہ، کہا قطعی فیصلے تک کسی بھی دفعہ پر روک نہ لگائی جائے۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اختتام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔